तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रामाराव ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सरमायाकारी के लिए आगे आने वाली कंपनियों के साथ हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई है। रियासती वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR ने माधापुर में इंटरनेशनल टेक पार्क का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद सरमायाकारी का मरकज बन गया है और दुनिया के लिए अद्वियात तैयार करने की सतह पर पहुंच गया है। मुल्क में 40% से ज़ायद अद्वियाती मसनूआत हैदराबाद में तैयार होती हैं। उन्होंने सरमायाकारी के लिए आगे आने वाली कंपनियों के साथ ताउन की यकीन दहानी करवाई है। वजीर IT ने उम्मीद जताई है कि हैदराबाद मुस्तकबिल में लाइफ साइंसेज का मरकज बनेगा। उन्होंने खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की हिमायत करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि खवातीन रिजर्वेशन बिल पास किया जाए। Testimony to what this city has in terms of a promising future. Day before yesterday, in fact, we had a group of 250 builders and construction companies from Maharashtra who we hosted here in Hyderabad. And one of the things that one of the leading builders from Maharashtra told me was they went around Hyderabad for 3 days. And then he comes to me and he says, so what is happening in Hyderabad essentially is, what is being built here essentially is India's own version of Singapore. And I was so delighted because Singapore is a country that I look up to. Singapore is certainly a country that we all looked up to. Singapore, Japan, these are the nations that have done tremendously well in our own, continent, Asia. And these are the countries we have so much to learn from. I have to confess, Mano, that while we were formulating our industrial policy in Telangana, we have looked at EDB, we have studied all the things that you guys have done in Singapore and have copied many aspects of it. We did not pay you for that, sorry about that. But we copied many aspects. Life is all about learning. Learning good things, picking up, imbibing the best elements of, and you also know that wise people learn from others' experience. You don't have to reinvent the wheel, you don't have to start from the scratch. So, have picked up quite a few things, and as Gauri said, I think Capital Land has been vested in Hyderabad for a very long time. AIMIM हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में मरकज़ के पेश करदा खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मुखालिफत करते हुए कहा है कि ये बिल हिंदुस्तान के मुसलमानों और OBC के खिलाफ है। पार्लियामेंट के ख़ुसूसी इजलास में आज मरकज़ के पेश करदा खवातीन रिजर्वेशन बिल पर बहस की गई। बेस्ट OBC ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि मोदी हुकूमत सिर्फ सवाराना खवातीन की नुमाइंदगी बढ़ाना चाहती हैं। इस बिल से OBC और मुस्लिम खवातीन की नुमाइंदगी मुतासिर होगी। बेस्ट OBC ने OBC और मुस्लिम खवातीन को कोटा ना देने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत रिजर्वेशन के अंदर मुस्लिम खवातीन को कोटा देने से इनकार करके उन्हें धोखा दे रही है। मुस्लिम और OBC खवातीन को उनके जायज़ हिस्से से महरूम किया जा रहा है। I thank you for giving the opportunity, sir. Sir, on behalf of my party, I stand to oppose this legislation because the justification being given for being the legislation is to ensure that more women get elected in the parliament and the state assemblies. If that is the justification, why is that justification not being extended to the OBC women and to the Muslim women, sir? Where the representation in this August House is minimal, very less. Secondly, sir, we know that Muslim women are 7% of the population, but in this Lok Sabha, their representation only 0.7%. We know for a fact that the annual dropout rate of Muslim girls is almost 19%, while it is 12% for other women. Sir, nearly half of the Muslim women are illiterate. This Modi government wants increased representation for Savarna women. They don't want representation for OBC women and for Muslim women, sir. 690 women MPs have been elected till the 17th Lok Sabha, and out of this 690, only 25 have come from the Muslim community. In 57, 62, 91, 99, there has been no Muslim woman got elected. May I tell you, sir, and bring to our notice of the August House,
that this number has never gone beyond four members. And when I hear that no, reservation cannot be given on religious grounds, what is 1950 presidential order? It is a deceive. You are deceiving the Muslim community by denying them this quota in this women reservation, sir. तेलंगाना कांग्रेस ने असेंबली इंतखाबात में टिकट के ख्वाहिशमंद 35 उम्मीदवारों के नामों को खतियत दे दी है। तेलंगाना कांग्रेस ने असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी रफ्तार तेज कर दी है और उम्मीदवारों के इंतखाब का अमल शुरू कर दिया है। ज़राए ने बताया कि उम्मीदवारों को मुंतखब करने के लिए तश्कील दी गई स्क्रीनिंग कमेटी 20 और 21 सितंबर को दिल्ली में इजलास मुनक़िद कर रही है। असेंबली इंतखाबात में जीतने वालों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए 35 उम्मीदवारों को मुंतखब किया गया है। शेरहदाबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए हुसैन सागर और आसपास के इलाकों का दौरा किया। गणेश त्यौहार का आगाज हो चुका है। 20 सितंबर से मूर्तियों का विसर्जन भी शुरू हो जाएगा। सीवी आनंद सीपी हैदराबाद ने पुलिस ओहदेदारों के हमरा एनटीआर मार्ग, तेलुगुतल्ली मुजस्सिमा, पीपुल्स प्लाजा व दीगर का दौरा करते हुए गणेश विसर्जन के इंतजामात की जांच की। सीवी आनंद ने शहरियों से अपील की है कि वो गणेश त्यौहार और विसर्जन के कामयाब इनेकाद के लिए इंतजामिया के साथ ताउन करें। AIMIM नामपल्ली एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने अहमदनगर डिवीजन का दौरा करते हुए तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर AIMIM की हिदायत पर नामपल्ली रुकने असेंबली जाफर हुसैन मिराज ने अहमदनगर डिवीजन में ऑक्सफोर्ड स्कूल के करीब बलकापुर नाले के SNDP कामों का मुआयना किया। दीगर महले जात में जारी बरखी वल्दी आबरसानी के तरक्याती कामों का भी उन्होंने जायजा लिया। बादजा MG नगर कमेटी हॉल ओवैसीपुरा में सालार मिलत कम्युनिटी हॉल में लगाए गए आधार कार्ड सेंटर और आरोग्य श्री हेल्थ कार्ड सेंटर का भी जाफर हुसैन मिराज ने दौरा करते हुए वहां जारी कामों का जायजा लिया और ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। इस दौरे के मौके पर अहमदनगर नुमाइंदा कॉर्पोरेटर सरफराज सिद्दीकी, महमूद हुसैन साबिक कॉर्पोरेशन मेंबर के अलावा महकमा बल्दी बरखी और आबरसानी के अफसरान, अहमदनगर डिवीजन के इब्तदाई यूनिट के सदूर व दीगर भी मौजूद थे। आज नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी अहमदनगर डिवीज़न में तफसीली दौरा किया गया है। ये दौरे का मेन मकसद ये था कि जो बलकापुर नाले का SNDP का काम चल रहा है वो काफ़ी स्लो चल रहा है, तो हम इसके लिए ख़ास दौरा करके ऑफिसर्स को बुलाए हैं। और इसमें न सिर्फ ऑफिसरों की गलती है बल्कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स है इन सब का एक ही है कि ये लोग आहिस्ता से काम कर रहे हैं। मेरे अपने हिसाब से बलकापुर नाला 25% ही कंप्लीट हुआ, 75% पेंडिंग है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं बलकापुर नाला SNDP के अंदर है, जल्द से जल्द इसको फास्ट काम कराए। कमिश्नर GHMC से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं और इसके लिए ख़ास तौर से हम अभी मिनिस्टर KTR साहब को भी लेटर लिखेंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार साहब को भी लेटर लिखेंगे और उनको बताएंगे कि मेजर फैक्ट क्या है और किस तरीके से ये काम को डिले किया जा रहा है, जिसके लिए आज हम ये इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। मेरे साथ में नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब सरफराज सिद्दीकी साहब, जनाब महमूद हुसैन इंजीनियर साहब, साबिक़ा कोऑप्शन मेंबर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमिदीन एक्टिव वर्कर तमाम के तमाम मौजूद थे। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास सदारत के अंदर, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आए दिन न सिर्फ अवाम के दरमियान में रहती है, अवाम के मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करती है। BSP के रियासती सरबरा RS प्रवीण कुमार ने ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल का खैर मक़दम करते हुए रिजर्वेशन को 33% से बढ़ाकर 50% करने का मुतालबा किया है। BSP तेलंगाना सदर RS प्रवीण कुमार ने लटकड़ी का पुल में वाक़ पार्टी के रियासती दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो मरकज़ की जानिब से लाए गए ख़वातीन बिल का खैर मक़दम करते हैं। उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात को 33% से बढ़ाकर
50% करना चाहिए और SC, ST, OBC खवातीन को भी नुमाइंदगी देनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जलसे-आम पर तबसरा करते हुए 6 स्कीमात कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में नाफिज करने पर जोर दिया है और दलितों के तहफ़्फ़ुज़ में कांग्रेस पार्टी को नाकाम करार दिया है। RS प्रवीण कुमार ने बीजेपी पर खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल को अगले इंतखाबात में फ़ायदा हासिल करने के लिए पेश करने का इल्ज़ाम आयद किया है। BRS MLC के कविता की जानिब से खवातीन बिल के लिए धरना मुनज़्ज़म करने पर BRS रियासती सरबराह ने कहा कि ED के मुकदमात से बचने के लिए कविता ने धरना मुनज़्ज़म किया था। उन्होंने सवाल किया है कि अगर ये कविता हकीकत में मुखलिस है तो BRS पार्टी में खवातीन के लिए रिजर्वेशन क्यों नाफिज नहीं किया गया। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूस में नामपली असम्बली हल्के के तुलबा और नौजवानों के लिए तहरीरी मुकाबला सीरत मोहसिन इंसानियत के उन्वान से 30 सितंबर को मुनक़्क़िद करने का ऐलान किया है। नौजवान नस्ल को पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाली ज़िंदगी और उनकी तालीमात से वाकिफ़ करवाने, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और अमन को फ़रोग़ देने के मकसद से AIMIM नामपली की जानिब से सीरत मोहसिन इंसानियत तहरीरी मुकाबले मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। MLA जाफर हुसैन मिराज ने बताया कि 30 सितंबर बरोज़ हफ्ता तहरीरी मुकाबला सुबह 11:30 बजे था 12:30 बजे मुनक़्क़िद होगा। मुकाबले बैक वक्त 4 मकामात MS जूनियर कॉलेज मेहदीपट्टनम, MS जूनियर कॉलेज मासाब टैंक, MS क्रिएटिव स्कूल मल्लापल्ली और MS क्रिएटिव स्कूल मुरादनगर में मुनक़्क़िद होंगे। उन्होंने कहा कि शुरा सहूलत के मुताबिक किसी एक जगह का इंतखाब कर सकते हैं। हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज के तुलबा तहरीरी मुकाबले में हिस्सा लेने के अहल हैं। वो उर्दू, तेलुगु और अंग्रेज़ी ज़बानों में लिख सकते हैं। मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी करार दिया गया है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 29 सितंबर है। जाफर हुसैन मिराज ने तुलबा और नौजवानों पर जोर दिया है कि वो इस मुकाबले में शिरकत करें और अपनी सलाहियतों और तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा करें। जाफर हुसैन मिराज के मुताबिक शुरा मुकाबले के लिए गूगल फॉर्म के लिंक के जरिए या फिर पोस्टर पर फराहम किए गए QR कोड को स्कैन करते हुए भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन मुफ्त है और तमाम अहल उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन की सहूलत दस्तयाब है। ज़्यादा तादाद में रजिस्ट्रेशन स्कूल के लेटर हेड के जरिए भी किया जा सकता है या व्हाट्सएप नंबर पर भी भेजा जा सकता है। उन्होंने मुकाबले के इनेकाद, मुकाबले में जीतने वाले तुलबा को दिए जाने वाले इनामात व दीगर तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। हम चाहते हैं कि हमारे अपनाए वतन भाई भी सीरत से वाक़फ़ियत हासिल करें, सीरत के बुक्स पढ़ें और उन्हों भी चाहे तो लिख सकते हैं। उसके अंदर जैसा आप जानते हैं इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, तेलुगु, मतलब इंग्लिश, उर्दू, तेलुगु तीनों में लिख सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन बिल्कुल बड़ा आसान है। थ्रू गूगल फॉर्म्स से आप रजिस्टर्ड कराना है। इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट अगर चाहा, कोई कॉलेज है या स्कूल है, जो भी है, उन्होंने अपने लेटर हेड के ऊपर बल्क रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये भी सहूलत दी गई है। इसके अलावा और भी अगर आप रजिस्ट्रेशन या तफसील कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उसमें 9989477206 ये नंबर एक है और एक नंबर है 9885771109। ये दोनों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार कारपोरेटर्स के नंबर है। इन लोग के ऊपर इसकी तमाम जिम्मेदारी है ताकि ये जो प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह आराम से हो और तमाम बच्चे आने वालों को सहूलत भी पहुंचे। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने अवामी नक्ल हमल को मजीद माहौल दोस्त बनाने के लिए शहर में इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने का फैसला किया है। पहले मरहले में बुध के रोज़ 25 इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई। बाकी बसें मरहलावार
सिलसिले में चलाई जाएंगी। PSRTC शहर के मुसाफिरों के लिए नई ग्रीन मेट्रो लग्जरी AC बसें मुतारिफ करवा रहा है, जो कि चारशंबे से दस्तयाब है। इसका आगाज वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने गच्चीबौली स्टेडियम के करीब किया। PSRTC के चेयरमैन और MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी, PSRTC के MD VC सज्जनार भी नई बसों को हरी झंडी दिखाते हुए देखे गए। PSRTC के मुताबिक कुल 50 ग्रीन मेट्रो लग्जरी AC खिदमात में से 25 बसें पहली किस्त में दस्तयाब कराई जा रही हैं और बाकी बसें 25 नवंबर तक दस्तयाब रहेंगी, जो मुसाफिरों को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और आलूदगी से बचाव के साथ साथ सफ़र का एक बेहतर और आरामदाह तजुर्बा फराहम करेंगी। हैदराबाद शहर में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गणेश त्यौहार के पेश नज़र पुलिस ने पुराने शहर में फ्लैग मार्च किया। साउथ जोन DCP साई चैतन्या की क़यादत में फ्लैग मार्च किया गया, जिसका आगाज चार मीनार से हुआ था। फ्लैग मार्च में रैपिड एक्शन फोर्स व दीगर टीमों ने हिस्सा लेते हुए मुगलपुरा पुलिस हदूद के महलजात मुगलपुरा, सुल्तान शाही, कवेली कमान, वाल्टा, शालीबंडा और दीगर इलाकों का अहाता किया। DCP साई चैतन्या के हमरा एडिशनल DCP शेख जहांगीर, छतरीना का ACP रमेश व दीगर भी मौजूद थे। आज साउथ जोन सिटी पुलिस और हमारे साथ आ रही है रैपिड एक्शन फोर्स के साथ एक फ्लैग मार्च किया। बिलचौक PS लिमिट्स पे अभी पूरा किया, सॉरी मोगलपुरा PS लिमिट्स पे। सुधा टाकिस वगैरह से स्टार्ट होकर सुल्तान शाही, कवेली कमान और वोल्टा के होते हुए ये राजेश मेडिकल हॉल तक आए। ये अभी हमारा, हम जानते हो अभी गणेश और मिलाद का अभी त्यौहार का ईदों का समय है, तो इसके लिए सभी लोगों को, सभी आवाम को भरोसा दिलाने के लिए पुलिस से कुछ भी प्रॉब्लम है हम लोग अटेंड करते हैं, वो भरोसा दिलाने के लिए हम लोग एक फ्लैग मार्च निकाला और आगे हम लोग शालीबंडा का एरिया पे भी घूमेंगे और ये आने वाले दिनों पे पूरा सारी साउथ जोन पुलिस स्टेशन पे सब पे फ्लैग मार्च होगा। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है ताकि लोगों पे कॉन्फिडेंस बढ़े कि अपना त्यौहार बिना कोई प्रॉब्लम के साथ, बिना कोई शेक के साथ लॉ के अकॉर्डिंग मनाने के लिए। थैंक यू। कुलसुमपुरा ACP डिवीजन में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गणेश त्यौहार के पेश नज़र हिसास इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स के अमले के साथ फ्लैग मार्च किया गया। हैदराबाद में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गणेश त्यौहार के पुरअमन इनेकाद के लिए और लोगों के जहनों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने, अमन बरकरार रखने के इक़दाम के हिस्से के तौर पर कुलसुमपुरा ACP की ज़ेरे निगरानी फ्लैग मार्च किया गया। कुलसुमपुरा डिवीजन के कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हदूद, टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हदूद और गुडी मलकापुर पुलिस स्टेशन हदूद में पुलिस ओहदेदारों और RAF के एहलकारों ने फ्लैग मार्च किया। ACP MA जावेद के हमरा तीनों पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर्स भी उनके हमरा मौजूद थे। सैदाबाद पुलिस ने गणेश और मिलाद जुलूसों के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने और शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने के लिए फ्लैग मार्च किया। सैदाबाद ACP की ज़ेरे निगरानी पुलिस के ओहदेदारों ने रैपिड एक्शन फोर्स के एहलकारों के हमरा सैदाबाद डिवीजन के हिसास इलाकों में फ्लैग मार्च किया। याद रहे कि दो त्यौहार एक ही दिन होने के सबब पुलिस अमन व अमान को यकीनी बनाने और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गणेश त्यौहार के कामयाब इनेकाद के लिए इक़दाम कर रही है। हिसास इलाकों की निशानदेही करते हुए उन इलाकों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। सैदाबाद पुलिस ने कई महलजात में गश्त करते हुए अमन की बरकरारी पर जोर दिया है। आज जो हमारा सैदाबाद डिवीजन में सैदाबाद और मादानापेटा इंस्पेक्टर साहब से साथ और उनके अमीन साहब के साथ मैं हमारा सैदाबाद का ACP हूँ डिवीजन का, हम और सेंट्रल फोर्स हमारे एरिया का सेंट्रल फोर्स आया था।
ये सेंट्रल फोर्स के साथ साथ हम यहाँ से पैदल सैदाबाद एरिया से लेके पूसल बस्ती, सैदाबाद चौरस्ता और सैदाबाद मेन रोड, बेबी घाट और कुर्मागुड़ा, चावनी, हनुमान टेम्पल और ऊपर बस्ती, बोया बस्ती, भरत नगर और मादनापेट एरिया पूरा पैदल घूमे। ये पैदल जो है आने वाला फेस्टिवल्स जो गणेश निमज्जन तक और मिलादुन नबी का सिलसिले में लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, उनको कुछ होने वाला नहीं है बल्कि बोलने के वास्ते उनको अवेयरनेस कर लेते हुए गए। आज पूरा 4 किलोमीटर का दवा ये पैदल हुआ और हर दिन ये घंटा ऐसे लगेगा। थैंक यू, थैंक यू। अफजलगंज पुलिस हुदूद में वाक़ एक ट्रांसपोर्ट के गोदाम में ज़बरदस्त आग लगने का वाक़या पेश आया। आतिशज़दी के इस वाक़े में लाखों रुपये का सामान जलकर खाकसार हो गया। तफसीलात के मुताबिक अफजलगंज पुलिस हुदूद में मूसा नदी से मुतसल पुतली बौली मेन रोड के करीब 3 झोपड़ियों में आग लगी और देखते ही देखते तेजी से करीबी कार्गो सर्विस तक फैल गई। आतिशज़दी के नतीजे में मुकामी ताजरीन के जरिए मुख्तलिफ रियासतों से लाया गया कीमती सामान जलकर खाकसार हो गया है। बताया गया है कि अमलाक को काफी नुकसान पहुंचा है। जबरदस्त आग लगने के बाद मकीनों में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस ने फायर फाइटिंग अमले के हमरा आग पर काबू पाया। बताया गया है कि 6 फायर इंजन की मदद से आग बुझाई गई। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने सैफाबाद पुलिस हुदूद में एक हुक्का पार्लर पर छापा मारा और 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए सैफाबाद पुलिस हुदूद में श्रीनिवासा रेसिडेंसी लॉज के छत पर चलाए जा रहे हुक्का पार्लर पर छापा मारकर 2 मुंतजमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से बचने के लिए दोनों अफराद ग्राहकों को बजरिए ऑनलाइन हुक्का फ्लेवर्स और हुक्का पॉट्स मुहैया करवा रहे थे। टास्क फोर्स टीम ने हुक्का फ्लेवर्स, हुक्का पॉट्स, मोबाइल फ़ोन और 2000 रुपये नकद रकम जब्त कर ली है और मुलजिमीन को जब्त शुदा अशिया समेत मजीद तफ्तीश के लिए सैफाबाद पुलिस के हवाले कर दिया है। अलवाल पुलिस ने मुखाफिल मकानात में सरखा करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए 17,85,000 रुपये मालियती मसरूखा अशिया बरामद कर ली है। मेडचल डीसीपी सुब्रेश ने मीडिया को बताया कि अलवाल पुलिस ने शुबे की बुनियाद पर एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए उससे पूछताछ की। दौरान तफ्तीश मुलजिम के आदि सारिक होने और कर्नाटक रियासत में सरखे की वारदातों में मुलविस होने और सजा काटने का इंकशाफ हुआ। डीसीपी ने बताया कि मुलजिम अलवाल पुलिस हुदूद और बोलारम पुलिस हुदूद में 8 मकामात पर सरखे की वारदातें अंजाम दे चुका है। उसके पास से 27 तोले सोना, 34 तोले चांदी के जेवरात और नकद रकम बरामद कर ली है। डीसीपी ने कहा है कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे रिमांड में भेज दिया गया है। बालानगर एसओटी ने कुकटपल्ली और केपीएचबी पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मकानात के लिए कर्ज और बिजनेस के लिए कर्ज के वसूल के लिए जाली रबर स्टैम्प्स और दस्तावेजात तैयार करने वाले 2 रैकेट्स का पर्दाफाश किया है और 2 रैकेट से जुड़े 18 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्र ने मीडिया को बताया कि आसानी से पैसा कमाने के लिए मुलजिमीन जाली दस्तावेजात और रबर स्टैम्प्स का इस्तेमाल कर रहे थे और लोगों को मकानात के वसूल के लिए कर्ज दिला रहे थे। उन्होंने बताया कि रकम की बिना पर रैकेट से जुड़े अफराद 3 से 4% कमीशन हासिल कर रहे थे। टोली से जुड़े 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके कब्जे से जाली रबर स्टैम्प्स, दस्तावेजात, लैपटॉप्स, CPU, मॉनिटर, प्रिंटर, स्टैम्प्स बनाने वाली मशीन, मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई है। जब्तशुदा अशिया की मालियत 10 करोड़ रुपये है। एक और वाक़े में कुकटपल्ली पुलिस ने बालानगर एसओटी के हमरा एक और रैकेट को बेनकाब किया है जो बिजनेस लोन फ्रॉड में मुलविस है।
पुलिस ने रैकेट से जुड़े 12 अफराद को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से जाली रबर स्टैम्प्स, जाली असनादात और दस्तावेजात जब्त कर लिए हैं। सीपी साइबराबाद ने शहरियों से जाली असनादात और दस्तावेजात से मुताल्लिक़ किसी भी मालूमात पुलिस तक पहुंचाने के लिए 100 डायल करने की ख्वाहिश की है। साउथ जोन स्पेशल जोनल क्राइम टीम ने मोबाइल शॉप में चोरी करने वाले सारिक को गिरफ्तार किया है और मसरूखा मोबाइल फ़ोन समेत दीगर अशिया बरामद कर ली हैं। तफसीलात मुताबिक 13 और 14 सितंबर की रात ISSN पुलिस हदूद में यादगिरी थिएटर के करीब एक मोबाइल की दुकान में सरक़े की वारदात पेश आई थी। मुलजिम राजन दास ने दुकान में दाखिल होकर मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान का सरखा कर लिया था। साउथ जोन स्पेशल जोनल क्राइम टीम CCS हैदराबाद ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया है और मजीद कार्रवाई के लिए बरामद शुदा अशिया के साथ उसे ISSN पुलिस के हवाले कर दिया है। SG सिटी क्राइम टीम ACP ने बताया है कि मुलजिम के 2 साथी मफरूर हैं और पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। हुकूमत हिंद ने कनाडा में मुकीम हिंदुस्तानी अवाम और तुलबा को एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से हिंदुस्तानियों और हिंदुस्तानी तुलबा के लिए जो कनाडा में मुकीम है एक एडवाइज़री जारी की गई है और ऐसे अफराद जो कनाडा का सफ़र कर रहे हैं उन्हें भी एडवाइज़री जारी करते हुए चौकस रहने का मशवरा दिया गया है। कनाडा में बढ़ती हुई भारत मुखालिफ सरगर्मियों, मुजरिमाना तशद्दुद और नफरत अंगेज जराइम के पेश नज़र वज़ारत ख़ारजा ने एडवाइज़री जारी की है। एडवाइज़री में हिंदुस्तान मुखालिफ एजेंडे की मुखालिफत करने पर हिंदुस्तानी सिफारतकारों और हिंदुस्तानियों के एक हिस्से को निशाना बनाने का जिक्र किया गया है। कनाडा में ऐसे मकामात पर सफ़र करने से भी गुरेज करने का मशवरा दिया गया है जहाँ ऐसे वाक़यात पेश आए हैं। कनाडा में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र हिंदुस्तानी तलबा को खुसूसी एहतियात बरतने को कहा गया है। हिंदुस्तानियों और हिंदुस्तानी तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो मदद ऐप के ज़रिए ओटावा इंडियन हाई कमिश्नर, वैंकूवर और टोरंटो कॉन्सुलेट में रजिस्ट्रेशन करवाएं। खालिस्तानी दहशतगर्द गुरपतवंत सिंह ने हिंदुस्तानियों को कनाडा छोड़ने और 25 सितंबर को ओटावा, वैंकूवर और टोरंटो में हिंदुस्तानी मिशन पर हमला करने की धमकी दी है। नामजद दहशतगर्द और कल अदम 6 फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पुनन ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को मुल्क छोड़ने की धमकी दी है और खालिस्तानी दहशतगर्द हरदीप के कत्ल का जिम्मेदार भारतीय हाई कमिश्नर को करार दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि वो निजार की मौत का बदला लेना चाहते हैं। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म कनाडा जस्टिन ट्रूडो की जानिब से हिंदुस्तानी हुकूमत के एजेंटों पर हमले की मंसूबाबंदी करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। दहशतगर्द गुरपतवंत सिंह ने हिंदुस्तानियों से कहा है कि वो कनाडा छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएं। वो 25 सितंबर को कनाडा के 3 मकामात जिनमें ओटावा, वैंकूवर और टोरंटो शामिल हैं, हमला करेंगे। मेजर जनरल अभिनया रॉय, एडिशनल डायरेक्टर जनरल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का कहना है कि कनाडा और हिंदुस्तान के दरमियान जारी कशीदगी का हिंदुस्तान कनाडा के दिफाई ताल्लुकात और आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 26 और 27 सितंबर को नई दिल्ली में हिंद बहरुल काहिल के आर्मी चीफ की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होने जा रही है। कनाडा और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी का आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस पर असर अंदाज होने का खदशा था, ताहम मेजर जनरल ने कहा है कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कनाडा के चीफ और उनका वक्त हिंदुस्तान आ रहे हैं। हमारा सिफारती नुक्ता नज़र और कनाडा के साथ हमारे फौजी रिकॉर्ड भी मौजूद हैं।
it doesn't impact us. The Canadian chief is coming in here, his delegation is coming in here, and like in case of even when we look at relationships with some neighbors of ours, where we may have had a standoff, but we continue to engage them at all levels, be it the military level and at the diplomatic level, and I'm referring directly to China here. So our diplomatic efforts, as also our military efforts with even Canada, continue to be there, and we, as part of the IPAM, they will form an important partner in this journey. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।